First of all, good morning to all students. In the last video of class 11th accountancy, we discussed a very important topic, that is journal. How we will record the transaction and events in the books of original entry, that is journal. And you know very well there are basically 5 types of account classified in accounting and which helps to record the transaction and events in the books of original entry. ये टॉपिक मैं बार बार इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर द अकाउंटिंग, और इस रूल के बिना आप ट्रांजैक्शन इवेंट्स को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ आप सभी लोगों के लिए वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन इवेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए वी शुड क्लासीफाई द होल अकाउंट्स इनटू द 5 कैटेगरीज। द फर्स्ट कैटेगरी इज एसेट्स, second category is the liabilities, third category is the income, fourth category is expense, and fifth category is capital. You know very well कि they are basically 5 categories of account in accounting. So you know very well, if there is an increment in assets, so it will be debited. If there is an increment in liabilities, so it will be credited. If there is increment in income, so it will be credited. If there is increase in the expense, so it will be debited. And in case of capital, if capital will be increased, so it will be a credited. On the other hand, if assets will be declined, it will be credited. Liabilities will decline, it will be debited. Income will be declined, so it will be debited. Expense will be declined, so it will be credited. And capital will be declined, so it will be debited. So it is a very important rule for accounting of the transaction events in books of original entry. It is this rule is also known as the Western rule of accounting. This rule is also known as the Western rule of accounting. And in this type of accounting, we classified the whole accounts into the 5 categories, and thereafter we debited or credited of these accounts on the basis of their nature. If it is increase, so it will be debited. If there is decrease, so it will be credited. In case of assets and in case of expense, and in case of liabilities, income and capital, if they are the increase, so it will be credited, and if they are a decrease, so it will be debited. So today we will move to the next topic and next important rule of accounting, the rules of accounting. First of all, we discuss the important system relating to the accounting, that is meaning of double entry system. You know very well the whole accounting process will be based on the double entry system and also based on the dual aspect concept. According to double entry system, business transaction affects at least 2 accounts in opposite direction. यानी बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो कम से कम 2 अकाउंट को इफेक्ट करते हैं, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में. फॉर एग्जाम्पल, इफ फर्नीचर इज परचेज इन द बिजनेस, फर्नीचर इज इंक्रीज वेयर एज कैश इज डिक्रीज. अगर हम किसी भी बिज़नेस में फ़र्नीचर ख़रीदते हैं तो फर्नीचर हमारे यहाँ बढ़ता है, लेकिन कैश कम होता है, क्योंकि पैसा तो जाएगा तभी तो बिजनेस कुछ आएगा. देयर कैन बी नो ट्रांजेक्शन इन द बिजनेस विच अफेक्ट ओनली 1 अकाउंट और विच ओनली 1 एस्पेक्ट. यानी कोई बिजनेस में ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं होता है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट को इफेक्ट करे. As such, both the aspect of every transaction are recorded under this system. It may, however, be noted that the double entry does not mean that a transaction is recorded twice. But it means that at least 2 accounts are affected by transaction, one account receiving a benefit and the other account yielding a benefits. बिल्कुल उससे सही है कि कम से कम 2 अकाउंट इफेक्ट करेगा, जिसमें एक अकाउंट बेनिफिट को रिसीव करेगा और दूसरा अकाउंट उसको बेनिफिट को प्रोवाइड करेगा. The person or the account receiving a benefit is debited, and the person or the account who gives something to the business is credited. The amount of every transaction is written twice, once as a debit and again as a credit. यानी एक अमाउंट जो है वो 2 बार लिखी जाएगी, एक डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में. जैसे कि एग्जांपल हम लें
कि वी रिसीव ₹5,000 फ्रॉम मोहन, अगर हम 5,000 रुपये मोहन से ले रहे हैं तो उसमें दो चीज़ें का इफेक्ट हो रही है, एक कैश आ रहा है और मोहन का अकाउंट आ रहा है। सो हमें बेनिफिट मिल रहा है। बेनिफिट किस फॉर्म में हमें मिल रहा है? कैश के फॉर्म में। तो कैश को क्या करना चाहिए? डेबिट करना चाहिए। एंड मोहन इज यील्डिंग अ बेनिफिट्स, तो मोहन से हमें बेनिफिट मिला है तो मोहन को क्या करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए। तो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन इवेंट्स होते हैं वो कम से कम दो अकाउंट को इफेक्ट करते हैं, वो भी एटलीस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे अगर हम बात करें फर्नीचर की, जैसे पहला एग्जांपल था, फर्नीचर परचेस किया तो फर्नीचर इंक्रीज़ हो रहा है, कैश डिक्रीज़ हो रहा है। वहीं दूसरी बात ये कहा गया कि वन अकाउंट रिसीविंग अ बेनिफिट एंड द अदर अकाउंट यील्डिंग अ बेनिफिट, और जो बेनिफिट रिसीव करता है उसे हमें क्या करना चाहिए? डेबिट, और जो बेनिफिट प्रोवाइड करता है उसे हमें क्या करना चाहिए? क्रेडिट। तो उसके बेसिस पे ये ट्रांजेक्शन था कि वी रिसीव ₹5,000 फ्रॉम मोहन, तो हमें कैश को डेबिट करना चाहिए और मोहन को क्या करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कैश हमें मिल रहा है रिसीविंग एज अ बेनिफिट, एंड मोहन जो है हमें बेनिफिट दे रहा है, सो उसको हमें क्रेडिट करना चाहिए। ओके। सो आज हम लोग मूव कर रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर द जनरलाइजिंग एंड फॉर द होल अकाउंटिंग प्रोसेस। जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया है ना कि हम लोग सारे अकाउंट्स को 5 कैटेगरी में डिस्कस करते हैं, डिवाइड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनको डेबिट और क्रेडिट करते हैं। उसी तरह से अकाउंट्स को अच्छे से समझने के लिए हम जो ट्रेडिशनल रूल ऑफ अकाउंटिंग है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। जो मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग है वो मैंने आपको बता दिया है कि अकाउंट्स को 5 कैटेगरीज में बांटते हैं और वो और इजी होता है जनरलाइजिंग में। लेकिन एक जो ट्रेडिशनल है, जो डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे एक रूल ऑफ जनरलाइजिंग फॉर्म किया गया है, उस पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, द ट्रेडिशनल रूल ऑफ जनरलाइजिंग which are as follows. According to this concept, the whole accounts will be classified into 2 categories. आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि जो डबल एंट्री सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग अकाउंट्स को 2 पार्ट में बांटा गया है, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। एंड फर्दर इम्पर्सनल अकाउंट विल बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, दैट इज़ रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। और ये बहुत ही पॉपुलर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है। जनरली हम लोग मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग या वेस्टर्न रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अकाउंट्स को 5 कैटेगरी में बांटा गया है, एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज़, इनकम एंड एक्सपेंस। बट ट्रेडिशनल रूल जो कहता है, जो डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे रूल है, उसका कहना ये है कि हमारे अकाउंट्स को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट को हम 2 फर्दर कैटेगरीज में बांटते हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो फर्स्ट we will move to the personal account. What is personal account? सबसे हम लोग बात करेंगे personal account, the account which relate to an individual, firm, company or an institution are called personal account. किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी फर्म का, किसी भी कंपनी का या किसी भी इंस्टीट्यूशन का कोई भी अकाउंट होता है उसे हम लोग पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे मोहन का अकाउंट ऑफ रामचंद्र, कृष्णचंद्र, डेटर का अकाउंट, क्रेडिटर का अकाउंट। डेटर मीन्स द पर्सन टू हुम गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिटर मीन्स द पर्सन फ्रॉम हुम गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। उसके बाद एक और एग्जांपल दिया, अकाउंट ऑफ DCM लिमिटेड, एक कंपनी का नाम है, उसका अकाउंट। अकाउंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, बैंक का अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, ये सब किसके एग्जाम्पल है? पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल। एक बार फिर से मैं बता दूं, पर्सनल अकाउंट मीन्स ऑल दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू द इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी और एनी इंस्टीट्यूशन विच इज़ नोन एज पर्सनल अकाउंट। वो पर्सनल चाहे जैसे भी हों, रियल नेचुरल हों या आर्टिफिशियल। जैसे अगर हम बात करें तो मेरा अकाउंट रितांशुज अकाउंट, ठीक है, आप में से भी किसी का एक अकाउंट, सलमान खान अकाउंट, कैटरीना अकाउंट,
रितांशु अकाउंट। ये सारे अकाउंट क्या हैं, किसी पर्सन के नेम है। तो ये पर्सन के जो नेम के अकाउंट होते हैं उन्हें हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। वहीं हम कंपनी की बात करें आर्टिफिशियल, जैसे यूनियन बैंक का अकाउंट, SBI बैंक का अकाउंट। आप बैंक में जाकर अकाउंट खुलवाते हैं ना, तो वो भी अकाउंट किसका एग्जाम्पल है, पर्सनल, क्योंकि किसी पर्सन का ही तो अकाउंट खुलता है उसमें। वहीं अगर हम लोग बात करें कंपनी का, तो कंपनी में जैसे बहुत फेमस कंपनी है रिलायंस, तो रिलायंस का अकाउंट, टाटा का अकाउंट। ये सारे जो अकाउंट्स हैं विच आर नोन एज द पर्सनल अकाउंट। यानी इन सिंपली वर्ड वी कैन से all the accounts which are related to the individual, firm or company, that is natural as well as artificial, will be known as personal account. And what is the rule? रूल क्या है सर, ये पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, हम कैसे किसको डेबिट करेंगे, कैसे क्रेडिट करेंगे। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि 5 टाइप के अकाउंट होते हैं। अगर एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, एसेट्स घटता है तो क्रेडिट करते हैं, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, घटता है तो डेबिट करते हैं। वैसे ही इसमें भी रूल गिवन है कि हाउ वी विल रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द पर्सनल अकाउंट इन द जर्नल। सो उसके लिए रूल बनाया गया, बहुत ही सिंपल रूल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो पाएगा उसको हमें डेबिट करना है और जो देगा उसको क्रेडिट करना है। माइंड इट, द रूल रिलेटेड टू द पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करना है, देने वाले को क्रेडिट करना है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाए, पेड ₹1000 टू हरी। अब देखिए इसमें अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन के फाइंड आउट करिए तो हमने 1000 रुपये दिया हरी को, तो हरी कौन है सर, हरी तो पा रहा है, तो रिसीवर, हु इज़ अ रिसीवर, रिसीवर इज़ हरी। और देने क्या जा रहा है आपके पास से, पैसा जा रहा है, देने वाला तो हम है ना, तो हमारा नाम अपने अकाउंट में थोड़ी ना होगा। हमारे लिए 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर होंगे, एक हरी इज़ अ रिसीवर, सेकेंड कैश विल बी आउटफ्लो, कैश विल बी go from the business. So in this situation we pass the journal entry which are as follows, that is हरी account debit to cash। तो यहाँ पे आपने रूल देखा, हरी को डेबिट किया गया क्योंकि वो रिसीवर था, और कैश गया क्योंकि एसेट्स चाहती है तो हम लोग एसेट्स को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों ही रूल आपके दिमाग में एकदम बढ़िया से होने चाहिए, तभी आप जनरेटिव को और इजी सॉल्व कर सकते। आप करने को तो उस 5 अकाउंट के बेसिस से भी जनरेटिव पास कर सकते थे, लेकिन कभी कभी वहाँ पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ये रूल भी जानना बहुत ज़रूरी है। एक और एग्जांपल देखिए, रिसीव ₹500 फ्रॉम मोहन। आपको 500 रुपया मोहन से मिला। अब आप बताइए सर, इसमें सबसे पहले पैसा मिला तो कैश आया, कैश मिला, पैसा मिला तो पैसा को क्या करते हैं, डेबिट। आपने पढ़ा है एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट करते हैं। देने वाला कौन है, भगवान है? नहीं, भगवान नहीं है इस क्वेश्चन में, देने वाला मोहन है। मोहन कौन है, गिवर। गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। वैसे सब तो भगवान ही देता है, लेकिन इस क्वेश्चन में 500 रुपये मोहन ने दिया, तो मोहन को ही ना हम लोग क्रेडिट करेंगे, और वहाँ हम दिए किसको थे, हरी को, तो हरी को डेबिट किए थे। यानी जो देगा उसको क्रेडिट करेंगे, और जो कहते हैं ना सारा क्रेडिट वो लेके चला गया। भैया जो देता है उसी को तो क्रेडिट मिलता है। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि जो देता है क्रेडिट उसी को मिलता है। तो क्रेडिट आपको ऐसे ही याद रखना है कि जो देगा, जो सब कुछ देगा, जो सब कुछ सेक्रीफाइस करेगा मेरे लिए, उसको हम क्रेडिट करेंगे, और जो लेके चला जाएगा, जो मज़ा लेगा, उसको हम डेबिट करेंगे। यही दुनिया का भी नियम है और यही अकाउंट्स का भी नियम है। सो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग अ पर्सनल अकाउंट? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी समझ लीजिए। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अ पर्सनल अकाउंट इज़ टू ascertain एज टू हाउ मच अमाउंट अ पर्सनल अकाउंट ओज टू द बिजनेस। यानी पर्सनल अकाउंट रखने का मेन मतलब ये होता है कि बिज़नेस में हम ये कैलकुलेट कर सकें कि कौन सा पर्सनल अकाउंट कितना पैसा बिजनेस का रखा हुआ है।
ठीक है, जैसे राम के पास मेरा कितना रुपया पड़ा हुआ है, श्याम के पास कितना रुपया पड़ा हुआ है, ये पता चल सकता है। एज वेल एज वी ऑल्सो आइडेंटिफाई एंड मेजरिंग द अमाउंट कि किसको कितना देना है। द टू इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द बिजनेस कि हमें किससे कितना लेना है और किसको कितना देना है, किसी पर्सन को, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल। जैसे नेचुरल मतलब राम को कितना देना है, मोहन को कितना देना है। आर्टिफिशियल का मतलब होता है अपने बैंक को कितना रुपया देना है, किसी पर्टिकुलर कंपनी को कितना रुपया देना है। ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं? विद द हेल्प ऑफ पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट मेंटेन इसीलिए किया जाता है ताकि हम पर्सन टू पर्सन, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो, उनके अकाउंट्स के बैलेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो ये था पर्सनल अकाउंट। एक बार फिर से हम आपके दिमाग में रख लें, पर्सनल अकाउंट मीन्स ऑल अकाउंट विच आर रिलेटेड टू द पर्सन, that is individual, firm, company or institution, whether there is a natural or artificial. For example, Mohan account, Ram account, Shyam account, debtor account, creditor account, army public school account, वगैरह वगैरह. And the rule of personal account is debit the receiver and credit the giver. जो पाएगा उसको डेबिट करेंगे और जो देगा उसको हम क्रेडिट करेंगे. Now we will move to the important part of this account, that is types of personal account. Personal account can be classified into following three categories. Personal account को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. देखिए, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तीनों ही पर्सनल अकाउंट के पार्ट होते हैं और तीनों में छोटा छोटा डिफरेंसेस होता है. छोटा मतलब बहुत लिटिल बिट डिफरेंस होता है और वो डिफरेंस आपके लिए ईजिली आइडेंटिफाई होता है क्योंकि विच आर रिलेटेड टू द वेरी कॉमन थिंग्स. द नेचुरल पर्सनल अकाउंट मीन्स अकाउंट ऑफ नेचुरल पर्सन. किसी भी नेचुरल पर्सन के अकाउंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहते हैं. इट मीन्स द अकाउंट ऑफ ह्यूमन बींग्स. किसी भी इंसानों के अकाउंट को जो नेचुरल ह्यूमन बींग्स हैं, जैसे मोहन का अकाउंट, सोहन का अकाउंट, सीमा का अकाउंट, निर्मला का अकाउंट, प्रोप्राइटर की कैपिटल का अकाउंट, प्रोप्राइटर के ड्राइंग का अकाउंट. प्रोप्राइटर मतलब ओनर, ये आपके मन में आया होगा. प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? ओनर ऑफ द बिजनेस. तो अगर ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं. उसके अकाउंट को भी हम लोग पर्सनल अकाउंट के क्राइटेरिया में रखते हैं. और अगर वो पैसा निकालता है तो उसको हम लोग ड्राइंग बोलते हैं, उसको भी हम लोग पर्सनल अकाउंट के क्राइटेरिया में रखते हैं. एज वेल एज डेटर एंड क्रेडिटर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी. सो व्हाट इज़ नेचुरल पर्सनल अकाउंट? नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है वो ऑल दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू द नेचुरल पर्सन, दैट इज़ ह्यूमन बीइंग, दैट इज़ राम, श्याम, मोहन, रितांशु, सच काइंड ऑफ थिंग्स एंड सच काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग. ये सारे लिविंग थिंग्स हैं ना, तो इनके सारे अकाउंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं. Now the second types of personal account is artificial personal account. Artificial personal account मतलब accounts do not have physical existence as human being, but they work as personal account. For example, any firm's account, any limited company's account, any institution account and many bank account. जैसे कोई भी पर्सनल अकाउंट जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, यानी वो ह्यूमन बींग नहीं होता, लेकिन उनको ह्यूमन बींग की तरह ट्रीट किया जाता है, उन्हें हम पर्सनल के अकाउंट के क्राइटेरिया में रखते हैं. और किस अकाउंट के क्राइटेरिया में? आर्टिफिशियल पर्सन. जैसे अगर हम बात करें फर्म्स के अकाउंट की, कंपनी के अकाउंट्स में, इंस्टीट्यूशन का अकाउंट हो, बैंक का अकाउंट हो. जैसे अगर हम बात करें तो पर्सनल अकाउंट में कंपनीज़ भी आती हैं, रिलायंस कंपनी आती है, टाटा कंपनी आती है, आपका स्कूल आता है, आर्मी पब्लिक स्कूल आता है. तो दे आर नॉट ए ह्यूमन बींग्स. वो सारे ह्यूमन बींग थोड़ी ना है, लेकिन हम उनको इनके नाम से जानते हैं, जिन्हें स्पेसिफिक एक्ट के तहत उन्हें पर्सन मान लिया जाता है. और किस टाइप का पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है. These account include the accounts of club, insurance company and accounts of government department which are categorized as the person in the business dealing. उन्हें हम पर्सन मानते हैं. जैसे अगर हम पर्टिकुलर किसी कंपनी को पैसा दे रहे हैं, रिलायंस कंपनी को पैसा दे रहे हैं अपना रिचार्ज करने के लिए मोबाइल, तो रिलायंस कंपनी को जो भी पैसा दे रहे हैं, तो रिलायंस कंपनी इज़ जस्ट लाइक ट्रीटेड एज अ ह्यूमन, जस्ट लाइक ट्रीटेड एज अ पर्सन. तभी तो हम उसको पैसा दे रहे हैं. हम उसके ऊपर केस कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर केस कर सकता है. ये सारे बेसिक राइट तभी मिल सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब हम उसे
पर्सन की कैटेगरी में रखते हैं। इसीलिए बैंक अकाउंट होता है, चाहे वो फर्म्स का अकाउंट हो, चाहे कंपनी का अकाउंट्स हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन का अकाउंट है, they are also treated as a personal account but in the category of artificial account. Now the third important type of personal account, that is representative account. When account represent a particular person or group of person, it is terms है representative personal account. ठीक है, जब कोई अकाउंट किसी पर्टिकुलर पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को इंडिकेट करता है, जैसे अगर हम बात करें, इफ द सैलरी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर आर नॉट पेड टू द एम्प्लॉयज़, the amount payable to these employees will be added and put under one common title, that is salaries account, outstanding account. जैसे मुझे किसी को पैसा देना था, 1,00,000 रुपये पैसा देना था एज अ सैलरी, बट मैंने उसको सैलरी नहीं दिया, तो अब वो मेरे ऊपर एक पर्टिकुलर बंदे का लाइबिलिटी क्रिएट होगा, और वो लाइबिलिटीज़ जो होगी वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करेगी। सो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग अकाउंट। उसी तरह से अपोजिट साइड में हम ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर हम किसी को एडवांस सैलरी दे देते हैं, तो वो भी पर्टिकुलर पर्सन को इंडिकेट करेगी कि वी पेड अ सैलरी इन एडवांस, दैट इज़ प्रीपेड सैलरी। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट हो या प्रीपेड अकाउंट है, सच काइंड ऑफ अकाउंट विल बी इंक्लूडेड इन द पर्सनल अकाउंट, बट इन द डिफरेंट कैटेगरीज, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, बिकॉज इट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन in the liabilities, in the liability form or in the assets form. Generally we can say, अगर हम आपको बेसिकली बताना चाहें तो representative personal account, all those account which have a prefix like as outstanding, prepaid, advance, accrued. सो सच काइंड ऑफ प्रीफिक्स अगर हम किसी भी पर्सन या किसी भी नॉमिनल अकाउंट के साथ यूज़ करते हैं तो उसे हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड रेंट, एक्रूड कमीशन, एडवांस सैलरी, such kind of account will be treated as representative personal account. Then so I hope you can easily understand they are basically three types of personal account, that is natural personal account which are related to the natural things, that is a human being, and artificial personal account means any account which are related to the company, firm, institution who work which work as a human being, as well as representative personal account, any account which represent as a person or a group of person, and such kind of account used a prefix like a outstanding, prepaid, accrued and advance. So now we will move to the next type of account, that is real account. It is a very important type of account, you know very well. All the accounts whose value can be measured in the terms of money and which are the properties of the business are terms as real account. कोई भी ऐसा अकाउंट जिससे हम मनी के टर्म में मेज़र कर सकते हैं और वो सारे टर्म्स या वो सारी थिंग्स जो हैं वो बिजनेस की एसेट्स होती हैं, उसे हम लोग रियल अकाउंट बोलते हैं। सिंपल वर्ड में और थोड़ा क्लियर करते हैं, ऑल अकाउंट्स विच कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी और विच आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बिजनेस, यानी कोई भी अकाउंट या कोई भी थिंग्स जिसे हम मनी के टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं या कोई भी प्रॉपर्टीज़ जो बिजनेस के नाम पे रजिस्टर्ड होती है उसे हम रियल अकाउंट कहते हैं। यानी एक सिंपल सा वर्ड अगर हम आपको बताएं, रियल अकाउंट इंडिकेट्स द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक, फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट। सो रियल अकाउंट, all those account whose value can be measured in terms of money and which are the properties of the business. Basically हम लोगों ने ये भी जाना था कि there are basically two types of assets, that is tangible assets and intangible assets. Tangible assets, all those assets which can be touched and which have a physical existence in the business, such like a cash account, stock account, furniture account, machinery account, building account. And intangible assets, all those
types of assets which do not have a physical existence, but real account express the uh, complete types of assets of the business, whether it is a tangible assets or intangible assets. तो आपको ये इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि सर एसेट्स है उसे मनी के फॉर्म में मेज़र भी कर सकते हैं, एज वेल एज उसे हम प्रॉपर्टी की कैटेगरी में रख सकते हैं. तो तीसरा डाउट ये आता था कि सर इसमें टेंजिबल लेंगे कि इंटेंजिबल लेंगे रियल अकाउंट में. तो ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स आर कवर्ड इन द रियल अकाउंट, whether it is a tangible assets or intangible assets. What is the rule of real account? तो रूल सबसे सिंपल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. अगर कोई एसेट्स बिजनेस में आती है, सपोज वी परचेज अ फर्नीचर, तो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है तो फर्नीचर को हम लोग डेबिट करेंगे. एंड व्हाट गोज आउट, अगर हम फर्नीचर खरीदेंगे तो उसके लिए हम कोई ना कोई प्राइस पे करेंगे, और जब कोई भी प्राइस पे करेंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे. सो इट इज़ अ वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ रियल अकाउंट कि कोई भी एसेट्स अगर हमारे बिजनेस में आती है, कम्स होती है, सो उसे हम डेबिट करते हैं, और कोई भी एसेट्स अगर हमारे बिजनेस से बाहर जाती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं. सो वी विल फॉलो द इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ रियल अकाउंट, दैट इज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अकाउंट? With the help of these account represent the value of various property owned by a business in terms of money and indicate the financial position of the business. देखिए, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंट. हम इस अकाउंट को क्यों मेंटेन करते हैं, रियल अकाउंट को? बिकॉज ऑफ इससे हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस में कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ की क्या वैल्यूज़ हैं, और प्रॉपर्टीज़ का इनफ्लो एंड आउटफ्लो पता चलता है कि बिजनेस में प्रॉपर्टीज़ कितनी बार आई हैं और कितनी बार गई हैं. यानी कितनी बार कैश आया, कितनी बार गया है, कितनी बार प्लांट एंड मशीनरी को हमने परचेस किया है, कितनी बार सेल किया है. सो इससे हमें हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का ईजिली पता चलता है. जैसे हम लोगों ने पर्सनल अकाउंट मेंटेन करते हैं तो उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये पता करना कि किससे कितना लेना है और किसको कितना देना है, यानी किससे कितना पैसा उधार है और किसको कितना पैसा उधार है, ताकि हम उसको पे कर सकें इन फ्यूचर में. नाउ पहले ही मैंने बता दिया है कि दे आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट, टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इंटेंजिबल रियल अकाउंट. टेंजिबल रियल अकाउंट ऑल दोज अकाउंट which can be touched, felt, measured, purchased and sold, like cash, stock, furniture, land, building. And it should be noted that bank account is not a real account but is an artificial personal account. ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट को हम लोग सेम मानते हैं. नहीं, कैश अकाउंट मतलब वो पैसा जो हमारे पास एज एन एसेट्स हमारे पास है, हमारे पॉकेट में, हमारे पर्स में, हमारे घर की तिजोरियों में. लेकिन जब हम उस पैसे को बैंक में जाके सबमिट करा देते हैं तो वो कैश अकाउंट एज एन अकाउंट नहीं होता, वो जस्ट लाइक कन्वर्टेड इनटू पर्सनल अकाउंट, क्योंकि अब हम उसको बैंक में जमा कर देते हैं, एक आर्टिफिशियल पर्सनस के बाद जाके जमा कर देते हैं. यानी मैंने अब बैंक को वो पैसा दे दिया, अब बैंक की जिम्मेदारी है कि उस पैसे को रखे और जब मुझे नीड हो उस पैसे को मुझे दे. सो एक तरह का वो भी तो बंदा ही है, एक नेचुरल नहीं है लेकिन वो एक तरह का आर्टिफिशियल पर्सन है. सो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. इंटेंजिबल अकाउंट क्या होता है? दीज अकाउंट रिप्रेजेंट सच थिंग्स विच कैन नॉट बी टच बट ऑफ कोर्स देयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी, जस्ट लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट. तो रियल अकाउंट में टेंजिबल अकाउंट भी आते हैं और इंटेंजिबल अकाउंट्स भी क्लियर होते हैं एसेट्स की, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है. और इनका सबसे बेसिक रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट. नाउ वी विल मूव टू द थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ अकाउंट, दैट इज नॉमिनल अकाउंट. एंड नॉमिनल अकाउंट मीन्स simply we can say all account which includes all expense and incomes. हमने क्या क्या बातें कर ली, पर्सनल अकाउंट डिस्कस कर लिया, रियल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? लाइबिलिटीज़ को, ठीक है, एंड एज वेल एज रिप्रेजेंट दी कैपिटल अकाउंट. ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें तो एसेट्स अकाउंट हो गया, तीन अकाउंट हो गए, दो अकाउंट बचे, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट. अगर हम मॉडर्न टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग पे डिस्कस करें तो 5 टाइप के अकाउंट है, जिसमें हम लोगों ने 3 को डिस्कस कर लिया. पर्सनल अकाउंट के अंडर में हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट और लाइबिलिटीज़ अकाउंट को इंक्लूड कर लिया है, और एसेट्स अकाउंट में हम लोगों ने डिस्कस किया है एसेट्स अकाउंट को, जो कि मॉडर्न अकाउंटिंग रूल ऑफ अकाउंटिंग में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. अब हम लोग बात करें नॉमिनल अकाउंट में, तो बचा कितना? 2 अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट एंड इनकम अकाउंट. तो बेसिकली वही है, वहाँ थोड़ा समराइज करके बताया गया है मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग में. यहाँ जो हम लोग डबल एंट्री सिस्टम में जनरलाइजिंग के रूल पढ़ रहे हैं, यहाँ पे
जो नॉमिनल अकाउंट है उसमें 2 अकाउंट इंक्लूड करते हैं, एक्सपेंस अकाउंट और इनकम अकाउंट। बहुत ही सिंपल रूल है। द एक्सपेंस एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल अकाउंट रिलेटिंग टू द एक्सपेंस ऑन परचेस, सैलरी, रेंट पेड, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेब्ट्स। यानी एक्सपेंस के क्या क्या एग्जाम्पल हैं? परचेस किया, सैलरी पे किया, रेंट पे किया, डिस्काउंट दिया, बैड डेब्ट्स। एंड द एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल अकाउंट रिलेटिंग टू द इनकम जैसे सेल्स, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड डिस्काउंट रिसीव। एंड रूल फॉर रिकॉर्डिंग नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट द एक्सपेंस एंड credit the income. It is a very important rule of nominal account, that is सारे एक्सपेंस को डेबिट किया जाएगा, जितने एक्सपेंस होंगे बिजनेस में सबको डेबिट किया जाएगा, और जितना इनकम होगा, गेन होगा, उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वी पेड अ सैलरी, अगर हमने सैलरी पे किया, सैलरी अगर हम पे करते हैं तो क्या करते हैं सर? सैलरी पे करेंगे तो पैसा जाएगा, कैश जाएगा बिजनेस से। और सैलरी इज एन इनकम और एक्सपेंस। सर सैलरी इज एन एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट। सो सैलरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि सैलरी इज एन एक्सपेंस। अगर हम दूसरी बात करें कि फॉर एग्जांपल रिसीव ₹1000 एज कमीशन, अगर हमें कमीशन मिला 1000 रुपये का, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? सर अगर हमें 1000 रुपये कमीशन मिलेगा तो कमीशन में कैश मिलेगा तो कैश डेबिट करेंगे, क्योंकि एसेट्स जब भी आती है उसको डेबिट करते हैं। और कमीशन अब इनकम है कि एक्सपेंस है? सर इनकम है। कमीशन जब मिल रहा है तो इट इज़ एन इनकम, और इनकम को हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। सो बेसिकली आपको 3 रूल ऑफ जनरलाइजिंग पढ़ना है अंडर द डबल एंट्री सिस्टम। It is a very traditional rule of generalizing under this type of system. First of all, we classified the account into 2 categories: personal account, impersonal account. And impersonal account categorized into 2 categories, that is real account and nominal account. The rule of personal account is debit the receiver, credit the giver. Real account, debit what comes in, credit what goes out. And nominal account, debit all expense and credit all incomes. So आज हम लोग इतने ही पे क्लोज कर रहे हैं। आई रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखिए। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिलेटिंग टू दिस टॉपिक प्लीज़ आस्क मी। और ये मत सोचिए कि ये टॉपिक यहीं ख़त्म हो गया, इसको थोड़ा और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपके सामने। और कंपैरिजन करना ना भूलिएगा। इससे पहले जो हमने 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को डिस्कस किया है, एसेट्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटीज़ अकाउंट, इनकम एक्सपेंस अकाउंट, और इसमें हम लोगों ने 3 अकाउंट पे डिस्कस किया है। तो वो दोनों से कैसे डिफरेंट है, दोनों में अलग अलग चीज़ें क्या हैं या सिमिलरिटीज़ क्या हैं, उस पर भी आप लोग थोड़ा सा एनालाइज़ करिएगा। आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर एनालाइज़ करेंगे और दोनों रूल्स को अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, उसके साथ एक एग्जाम्पल लेंगे ताकि और ईजी आपके लिए पड़े न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।